Hello class, welcome back. Welcome back to your computer class. So kids, in the last class we had done first generation and the second generation's computer, and now we have to discuss about the third generations of computer. Okay, fine. So this is our time to discuss the third generations of computer. Now what is here about third generation computer? Let us read. So, in the mid of 1960s, the development of integrated circuit was a major breakthrough, resulting in the introduction of the third generation computer. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट का जो इन्वेंशन था वो क्या था, एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू था. ब्रेक थ्रू मतलब एक रेवोल्यूशनरी प्रोसेस था ये. The transistors were replaced by the integrated circuit. Now what happened? तो जो ट्रांजिस्टर्स थे, ट्रांजिस्टर जो थे वो रिप्लेस किससे हुए? इंटीग्रेटेड सर्किट से. And they are also known as semiconductor chips, which made the computer more powerful and increased the speed and efficiency of the computer. तो उससे हुआ क्या? इससे कंप्यूटर की स्पीड, ठीक है, स्पीड और उसकी एफिशिएंसी दोनों ने ही, कि दोनों में ही क्या हुआ, दोनों ही क्या हुए, काफ़ी हद तक इम्प्रूव किए. ठीक है, मतलब उसकी स्पीड भी और एफिशिएंसी भी. सो जो ट्रांजिस्टर्स था वो किससे रिप्लेस हुआ? ट्रांजिस्टर रिप्लेस हुआ इंटीग्रेटेड सर्किट से. ट्रांजिस्टर्स रिप्लेस हुए इंटीग्रेटेड सर्किट से, ऑल्सो नोन एज द सेमीकंडक्टर चिप. उसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम सेमीकंडक्टर चिप्स. ठीक है ना. यहाँ पे देखो एक आपको एक ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है इंटीग्रेटेड सर्किट की एक साइड से. इंटीग्रेटेड सर्किट एक्चुअली कितना छोटा होता है, दिस यू कैन सी हियर. इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है वो एक्चुअली कितना छोटा होता है, वो हमें यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से हमें पता चल जा रहा है. राइट, ओके. नाउ मूविंग अहेड. The third generation computer could carry the billions of instruction in a few seconds. So what is the best part about the third generation computer? That they can carry the billions of instruction in a few seconds. कुछ seconds में वो billions of instruction क्या कर सकते थे? इंस्ट्रक्ट कर सकते थे. बिलियंस ऑफ कंप्यूटर को वो क्या कर सकते थे? वो प्रोसेस कर सकते थे. द साइज ऑफ दिस कंप्यूटर वो सो स्मॉल दैट दे कुड फिट इनटू द स्मॉल फाइल कैबिनेट. तो ये कंप्यूटर की जो फाइल होती थी वो इतनी छोटी मतलब होती थी कि अभी तक के जो कंप्यूटर्स होते थे वो काफ़ी बड़े होते थे. बट अब जो कंप्यूटर्स बनने लगे उनकी साइज इतनी छोटी होती थी कि दे कैन ईजिली गेट फिटेड इनटू अ स्मॉल फाइल कैबिनेट. एक फाइल कैबिनेट में आसानी से क्या हो जाते थे, ये कंप्यूटर फिट हो सकते थे. Now, examples of the third generation computer are IBM 360, ICL 1900 and CDCS Extra. These all are the what? These all are the third generations computer. ठीक है, ये सारे क्या है? These all are the third generations computer. Now moving ahead. ठीक है, features of the third generation computer. So below listed there is a list which is dealing about the third generation computer के जो भी features होते थे. सबसे पहली चीज क्या हुई? द साइज बिकेम स्मॉलर. साइज ऑफ दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर दे गेट स्मॉलर. दे वेर मोर रिलायबल. दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर्स, इनका क्या फीचर्स थे? हम इन कंप्यूटर्स पे ज्यादा रिलाई कर सकते थे. Users interacted with keyboard and monitor which interfaced with an operating system. User what they do? They interacted with the keyboard and monitor and they which interface with an operating system. उससे क्या होता था? वो एक operating system में क्या होता था? User interacted with keyboard and monitor which interface with an operating system. ठीक है? They generated less heat. ये जो कंप्यूटर्स होते थे इनकी हीट जो होती थी कैसी होती थी? लेस होती थी. कम हीट ये प्रोड्यूस करते थे. Now, moving ahead, they use the high-level language like COBOL and Fortran. So these type of language, what they do, these type of computer they uses the high-level language. ये computer जो होते थे ये high-level language क्या करते थे?
यूज करते थे। फाइन। Okay, they generated the less heat. The fine. Now moving ahead. Now let us discuss about the fourth generation computer. Okay, now we are going to discuss about the fourth generation computer. Okay, the fourth generation computers is started in 1971. The fourth generation computer it started in 1971. ठीक है, and it used the microprocessor. तो fourth generation के computers से what they use the microprocessor. ठीक है, the size of the computer become very small as thousands of the integrated circuits were built onto a single silicon chip. एक single silicon chip पे thousands of integrated circuit बनाते थे. सोचो कितना छोटा होता होगा कि एक integrated circuit मतलब एक इंटीग्रेटेड सर्किट और अब एक माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट बनाए जाने लगे, तो मतलब साइज का अनुमान आप लगा सकते हैं. Now next is what? These computers become more powerful and they could be linked together to form the network. So these type of computer what happen? These computer become more powerful and they could be linked together to form what? To form the network which led to the development of the internet. So these type of computer this can lead to the network. Now moving ahead. Intel 4004, Macintosh, IBM 370, etc. are the example of the fourth generation computer. These all are the example of what? These all are the example of the fourth generation computer. The programming language used are C, C++, Java, etc. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो थे वो सी प्लस प्लस जावा ये सारे थे. द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आर सो स्मॉल दैट दे कैन फिट इनटू अ स्मॉल डेस्क और इवन ऑन द पाम ऑफ द हैंड. द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि अब देखो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जैसे मैं जो यूज़ कर रही हूँ अब उसमें भी देखो एक छोटा सा चिप लगा हुआ है. The fourth generation computer are so small that they can fit onto a small desk. Small desk जैसे कि अभी मैं अगर ये वीडियो बना रही हूँ with the help of my laptop. So what I'm using, I have just kept it on a desk and I'm making it. ठीक है, तो ये एक desk पे आसानी से आ जा रहा है. Now let us discuss the features of the fourth generation computer. They use the microprocessor. Fourth generation computer क्या use करते थे? They use the microprocessor. They are the multi-purpose computer. These computers are what? The benefit of these computers are that they are multi-purpose. Next, they are accurate and reliable. These computers are accurate. These type of computer what they are accurate and reliable. The operating speed is very fast. Operating speed of these type of computer is very fast. Okay, now let us read this and let us update our knowledge. Now, a microprocessor is what? It's a small chip that does all the processing in a computer. Microprocessor is what? It's a small chip. And what it does all the processing in a computer. The integrated circuit is a small electronic device made out of semiconductor material. The integrated circuit is also called chip. The first IC was developed in 1950. 1950 में क्या हुआ था? सबसे पहला IC बनाया गया था. ठीक है, and what is the meaning of IC here? Integrated circuits. Now let us discuss about the fifth generation computer. The fifth generation computers are based on the artificial intelligence. They are still in development. The fifth generation computers are based on the artificial intelligence and these computers are still in the development. Fine. The main goal of the fifth generation is to develop the computer that can respond to the natural language. So the basic of the fifth generation
that they can respond to the natural language, and they are capable of learning and taking of their own decision. For example the robots. यहाँ पे आप देखो, तुम आप लोगों के पास टॉय रोबोट्स काफी सारे होंगे, आप लोगों के पास टॉय रोबोट्स होंगे, बट the main goal of the fifth generation is to develop the computer that can respond to natural language. So now the computers can respond to the natural languages, and they are capable of learning and taking their own decision. एग्जाम्पल रोबोट. मैंने पहले भी इस चैप्टर को जब मैंने जब पहले भी इस टॉपिक को डिस्कस किया था तो आपको बताया था कि कई सारी जगह क्या हो रहा है कि रोबोट्स जो हो रहे हैं वो अलग अलग जगह पे काम भी करते हुए नजर आ रहे हैं. So the fifth generation computer are based on what? Artificial intelligence. These computers are based on the artificial intelligence. They are still in the development. These computers are what? So these fifth generation computers, they are still in what? They are still in development. The main goal of the fifth generation is to develop the computer that can respond to the natural language. ठीक है? The main goal of the fifth generation computer generation क्या होता है? Is to develop the computer that can respond to the natural languages and are capable of learning and taking their own decisions. So these computer, इनकी खासियत क्या होती है कि ये डिसीजन खुद ले सकते हैं. अभी तक तो हमने यही पढ़ा कि कंप्यूटर क्या होते हैं, दे आर द स्टूपिड मशीन, they cannot make and take their own decision. But what about these computers? They can make and take their own decision. ये computers क्या होते हैं? अपने डिसीजन को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं. नाउ दिस इज सेल्फ इवेल्युएशन. सो आई एम लीविंग दिस पार्ट. ठीक है, मैं ये पार्ट छोड़ रही हूँ एंड आई एम मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज कंप्यूटर लैंग्वेजेस. सो राइट नाउ वी हैव फिनिश्ड द जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कंप्यूटर लैंग्वेजेस. ठीक है, अगला पार्ट क्या, कंप्यूटर लैंग्वेजेस का है. ठीक है, ओके. जैसे अब पहले कंप्यूटर लैंग्वेजेस समझने से पहले लैंग्वेज को समझते हैं कि लैंग्वेज क्या होती है. ठीक है, तो जिस तरह से हमें एक दूसरे की बात को समझने के लिए वी नीड लैंग्वेज, एक दूसरे की बात को समझने के लिए हमें लैंग्वेज की ज़रूरत होती है. सिमिलरली वी नीड द कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज की भी ज़रूरत हमें सॉरी सेम उसी चीज़ के लिए हमें कंप्यूटर लैंग्वेजेस की भी ज़रूरत होती है. मतलब अब हम ह्यूमंस अपनी बातें एक दूसरे से करते हैं विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज. ना हैव यू एवर थॉट कि हाउ कंप्यूटर अंडरस्टैंड, जैसे कि मैम ने बताया है आपको कि कंप्यूटर तो एक स्टूपिड सा मशीन होता है, कंप्यूटर एक स्टूपिड मशीन होता है. तो कंप्यूटर क्या होता है, एक स्टूपिड सा मशीन होता है. और जब कंप्यूटर एक स्टूपिड मशीन होता है, सो व्हाट अबाउट द स्टूपिड मशीन. देखो, तो देखो दैट मीन्स कि इट नीड ह्यूमन इंटरवेंशन. सो सिमिलरली क्वेश्चन अराइजेस दैट इन विच लैंग्वेज डज इट नीड द ह्यूमन इंटरवेंशन. किस भाषा में वो इंसानी भाषा को, मतलब किस भाषा में वो इंसानी कमांड्स को समझेगा. तो ये जो लैंग्वेजेस होते हैं हम उन्हीं को क्या बोलते हैं, वी कॉल देम कंप्यूटर लैंग्वेजेस. ठीक है, हम उन्हीं को क्या बोलते हैं, वी कॉल कंप्यूटर लैंग्वेजेस. Okay, so a computer language is what? A computer language is a special language understood by the computer. सबसे सिंपल डेफिनेशन जो कंप्यूटर की हो सकती है, कंप्यूटर लैंग्वेज की हो सकती है, वो यही हो सकती है कि एक ऐसी भाषा जो कि कौन समझे, जो कि कंप्यूटर समझे. ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ वर्ड, सिंबल एंड कोड दैट इज यूज्ड टू राइट द कंप्यूटर प्रोग्राम. ठीक है, fine. So a computer language is a special language understood by the computers. It consists of a set of words, symbol and codes, and it is used to write a computer program. A program is a set of instruction given to a computer to get a particular task done. ठीक है, a program is a set of instruction. What is a program?
A program is a set of instruction given to a computer to get a particular task done. Fine. The process of writing a program is called the programming. What is the programming? The process of writing a program is called programming. The people who can write a program are called the programmer. ठीक है, वो लोग जो कि प्रोग्राम लिखते हैं, what we call them, they are what? They are programmer. Now, तो अभी हमने कुछ कंसेप्ट देखे, जैसे कि कंप्यूटर प्रोग्राम. So it consists of a set of words, symbol and code that is used to write a particular program. So a program is what? A program is a set of instruction. program क्या है? एक set of instruction है given to a computer to get a particular uh, it consists of a set of word symbol code that is used to write a computer program. A program is a set of instruction given to a computer to get a particular task done. To get a particular task done, उसके लिए हम यूज करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स को. फाइन. ओके. नाउ अब बात आती है प्रोग्रामिंग. सो प्रोसेस ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स, जो प्रोसेस से हम प्रोग्राम लिखते हैं उससे हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट प्रोग्रामिंग. एंड द पीपल हु कैन राइट प्रोग्राम्स आर कॉल्ड द प्रोग्रामर. वो लोग जो कि प्रोग्राम्स को लिखते हैं, व्हाट वी कॉल देम? वी कॉल देम प्रोग्रामर्स. ठीक है. जस्ट एज ह्यूमन अंडरस्टैंड अ वैरायटी ऑफ स्पोकन लैंग्वेजेस. So, just as human can understand a variety of spoken languages, computer cannot understand these languages. Computer understand only one language, that is machine language. कंप्यूटर ये सभी लैंग्वेजेस को नहीं समझता. कंप्यूटर सिर्फ वन लैंग्वेज को समझता है, दैट इज मशीन लैंग्वेज. मतलब आप जो भी लिखते हो, अब जैसे मैंने हमारे अगर स्क्रीन पे इतनी सारी अगर हमारे स्क्रीन पे इतनी सारी चीज़ें भी लिखी हुई हैं, तो कंप्यूटर इन सब में से कुछ नहीं समझेगा. कंप्यूटर इन सब को पहले कन्वर्ट करेगा. कन्वर्ट किस में करेगा? मशीन लैंग्वेज में. इट विल अंडरस्टैंड दैट ओनली. कंप्यूटर विल अंडरस्टैंड दैट ओनली. नाउ moving ahead. Now the next thing. Computer use machine language to carry out their job. Computer use machine language to carry out their job. ठीक है. कंप्यूटर क्या यूज करता है? कंप्यूटर यूज करता है मशीन लैंग्वेज को अपनी जॉब को करने के लिए. दिस लैंग्वेज यूजेस द बाइनरी डिजिट. ये जो लैंग्वेजेस होते हैं, ये क्या यूज करते हैं? बाइनरी डिजिट्स. ठीक है. जो मशीन लैंग्वेज की बात यहाँ पे की गई, तो मशीन लैंग्वेज क्या है? मशीन लैंग्वेज इज नथिंग बट 0 and 1. Machine language is nothing but 0 and 1. Okay. Now, moving ahead. Computer uses machine language to carry out their job. Computer uses machine language to carry out their job. ठीक है, इतना हमें पता चला. And this language uses the binary code only, 0 and 1. ये क्या यूज करते हैं? बाइनरी कोड. सिर्फ और सिर्फ बाइनरी कोड. Okay, now. But it is difficult for the programmer to write their program directly in terms of these digits. ठीक है, ये बहुत डिफिकल्ट था कंप्यूटर के लिए, प्रोग्रामर्स के लिए, कि भाई 0 and 1 में ही सारी कोडिंग कर दी जाए. तो फिर उसके लिए उन्होंने क्या किया? डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को उन्होंने क्या किया? इजाद किया. डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को उन्होंने बनाया. ठीक है.
Therefore, some other computer languages have been developed in which writing program is easy. In which मतलब ऐसे भी अब जैसे 0 1 के टर्म्स में अगर मुझे लायन लिखना है या कैट लिखना है तो उसको 0 1 के टर्म्स में लिखना क्या हो सकता है, डिफिकल्ट हो सकता है. तो अगर उसे उस तरह से लिखना डिफिकल्ट होगा तो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम? So the only solution we can give to this type of problem, the only solution that we can give to this type of problem is that we develop some other languages. ठीक है. Now, so some other computer languages have मतलब other than this 0 and 1 thing, other than this machine language, have been developed in which writing programs is easier. However, a computer cannot understand these languages. Computer in languages को directly नहीं समझता. So some special software have been developed which translate the programs written in the other language into the machine language. So what happened? कि जैसा कि हमें पता है कि कंप्यूटर सिर्फ 0 and 1 को ही समझता है. कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड नथिंग एल्स बट ओनली 0 and 1. तो अगर कंप्यूटर सिर्फ 0 and 1 को ही समझता है तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो कुछ ऐसे भी प्रोग्राम्स और ऐसे भी सॉफ्टवेयर डेवलप किए गए हैं जो कि क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं. जो कि क्या करते हैं, कंप्यूटर की वन लैंग्वेज टू अदर लैंग्वेज वो क्या करते हैं, वो ट्रांसलेट करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज categories of the programming language. Next is what? Categories of the programming language. There are a number of programming languages available nowadays. ठीक है, अभी क्या है कि कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं. ओके, ठीक है. तो सम लैंग्वेजेस वर डेवलप फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. ठीक है. व्हाट हैपन कि कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनको कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज किया गया. फॉर एग्जांपल, okay, now, so some languages were developed for the specific computers. Other were developed for the specific uses such as the scientific or the business application. Fine. Now let us move ahead. तो अब यहाँ पे इन्होंने categorize कर दिया है language को. Two parts में इन्होंने language को क्या कर दिया, categorize कर दिया है. ठीक है. Low level languages and the high level languages. Two types of languages are there. Low level languages and the high level. Now when we talk about the low level languages, so low level languages क्या होती है? These are the machine languages and the assembly languages. ठीक है. लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं? देखो, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, ये जो दो कैटेगरी हुई है, इसको इस तरह से समझिए कि लो लेवल लैंग्वेजेस जो होती है वो कंप्यूटर को समझने में आसान होती है. कंप्यूटर उन लैंग्वेजेस को आसानी से समझ लेता है. लो लेवल लैंग्वेजेस को कंप्यूटर को समझने में आसानी होती है. बट हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं वो, फिर से, लो लेवल लैंग्वेजेस कंप्यूटर आसानी से समझ जाता है, ह्यूमंस को समझने में, उसे क्रैक करने में टाइम लगता है. बट हाई लेवल लैंग्वेज में वाइस वर्सा होता है. हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर समझ जाता है और ह्यूमंस को उसे क्रैक करने में, उसे समझने में क्या लगता है, टाइम लगता है. नहीं. फाइन. सो लो लेवल लैंग्वेज को टू पार्ट में क्या 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 किया गया, कैटेगराइज किया गया, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज. नाउ अब फिर हाई लेवल लैंग्वेज को कितने पार्ट में किया गया? प्रोसीजरल लैंग्वेज, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज एंड नेचुरल लैंग्वेज, ऐसे करके तीन पार्ट में इनको भी कैटेगराइज किया गया. नाउ नेक्स्ट इज कंप्यूटर लैंग्वेजेस का. अब यहाँ पे उसको अच्छे से एक एरो डायग्राम के साथ कंपैरिजन दिखाया है. तो अब यहाँ पे देखो, कंप्यूटर लैंग्वेजेस को टू पार्ट में कैटेगराइज किया गया. फर्स्ट इज लो लेवल लैंग्वेजेस एंड द अदर वन इज हाई लेवल लैंग्वेजेस. ठीक है. लो लेवल लैंग्वेजेस में दो पार्ट आ गए, मशीन लैंग्वेज एंड द असेंबली लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज तीन पार्ट में बटा, प्रोसीजरल लैंग्वेज, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज एंड नेचुरल लैंग्वेज. ठीक है. प्रोसीजरल लैंग्वेज, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज एंड नेचुरल लैंग्वेजेस. अगेन, मशीन लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज आई? फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, 1GL, मतलब फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज. असेंबली लैंग्वेज में 2GL, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज. प्रोसीजरल लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज. नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज. फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज, फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज. समझा? ओके. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड बाय द लो. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द लो लेवल लैंग्वेजेस. ठीक है. सो read it once.
रीड अबाउट लो लेवल लैंग्वेजेस। एक बार आप खुद रीड करो, उसके बाद मैम इसे एक्सप्लेन करेंगे। ऑल्दो ये टॉपिक हमने कर लिया है, पहले हमने ये टॉपिक किया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए, बट ठीक है, थिंग्स हैपन। ओके, अच्छा, ठीक है। So, low level language are written to run a particular computer and cannot be easily used on other computer. Low level languages are particularly um, written to run on a particular computer and cannot be easily used on the other computer. Machine language. A machine language, also called the first generation language, is a language directly understood by a computer. ठीक है, machine language, also called the first generation language, is a language directly understood by a computer without any translation. It refers to zeros and ones that a computer can understand as instruction. Due to this reason, it is also called the low level languages. Limitation of the machine language. Machine language program run only on the computer for which they have been developed. That is the machine dependent. अब मशीन लेवल लैंग्वेज की जो एक खामी है वो ये हमें पता चलती है कि मशीन लेवल लैंग्वेजेस दे आर मशीन डिपेंडेंट, मतलब जिस मशीन्स के लिए बनी है ये सिर्फ उसी मशीन्स पे क्या करेगी, ये सिर्फ उसी मशीन पे काम करेगी। मशीन, जिस मशीन के लिए ये लैंग्वेजेस बनी है, दे विल वर्क ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर मशीन, ठीक है। सो पहला पॉइंट इज दे आर मशीन डिपेंडेंट। सेकेंड इज मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम आर नॉट पोर्टेबल टू अदर कंप्यूटर। दे आर वॉट, दे आर नॉट पोर्टेबल टू द अदर कंप्यूटर। फाइन, मतलब आप चाहो कि इसको वन कंप्यूटर अदर आप पोर्ट कर दो तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये थी बात मशीन लैंग्वेज की। हमें क्या पता चला, मशीन लेवल लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। देन व्हाट इज नेक्स्ट थिंग आफ्टर दिस, नेक्स्ट इज जीरो एंड वन, ठीक है। ड्यू टू इसीलिए मतलब क्योंकि ये सिर्फ जीरो एंड वन का यूज करती है, तो दैट्स व्हाई वी आल्सो कॉल इट लो लेवल लैंग्वेजेस। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, वी आल्सो कॉल इट लो लेवल लैंग्वेज। हम इसे व्हाट वी कॉल इट लो लेवल लैंग्वेजेस आल्सो। नाउ नेक्स्ट इज असेंबली लैंग्वेज। Assembly language, also called the second generation language, is also a low level programming language. An assembly language uses letter and symbol instead of using the number. A program written in assembly language uses a short sequence of letter called the mnemonic codes, like A for addition, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या यूज होता था, यहाँ पे सिंपल सिंपल ये क्या यूज कर रहे हैं, वेट लेट मी क्लोज ऑल दीज एप्लीकेशंस। यहाँ पे वो क्या यूज कर रहे हैं, असेंबली लैंग्वेज यूजेस द लेटर सिंबल दी इंस्टीड ऑफ लेटर सिंबल, वो यूज करते हैं इंस्टीड ऑफ की सेंटेंसेस के, ठीक है। नाउ ए, जैसे यहाँ पे कोड्स, दे यूज कोड्स, ए फॉर एडिशन, सी फॉर कंपैरिजन, इस तरह करके दे यूज द शॉर्ट कोड। नाउ असेंबली लैंग्वेज इज द सोर्स प्रोग्राम विच मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज। सो ट्रांसलेशन ऑफ असेंबली लैंग्वेज इज अ मस्ट, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, ट्रांसलेट होनी चाहिए मशीन लैंग्वेज में, उससे पहले कि जब कि कंप्यूटर उसे समझे, ठीक है। तो ये बात हो गई यहाँ पे मशीन लैंग्वेज की के बारे में। फाइन, okay class. So class, this is it for today, and from the next class we'll start this chapter machine language के बारे में थोड़ी और बातें हम पढ़ेंगे। And yes, this is it for today, and now ma'am will meet you in the next class.